how much money do you So need do to this invest? calculation on an Excel sheet. We know the formula. Amount is that you're going to get, you should have 1,50,000 after 17 years. So use the present value formula where you put 17 as NPR, 8%, and future value should be 1,50,000. So how much money you should today, invest so that it should grow to 1,50,000 in 17 years? 40540. 40540. Okay. So you can do even, of course, it will require a lot of time to calculate using the calculator. So, but you can go always to the, the tables also and look at. So it will give you answer of 40,540. Okay. Fine. In a table, you can see, that 1 rupee after 17 years at the 8% will go to only 0.27. So you multiply, you get the present value. Okay. So you can just use the table also. You will find the table, it will have 0.27. So this is the amount. Okay. Is this clear? So you use this, Yes, sir. Excel sheet where you put 8% as the rate of interest, NPR 17, future value you need 1,50,000. So it will become, so you need 40,000 needs to be invested today so that it can grow to 1,50,000 in 17 years at 8%. So when your child grows, you can just, use that for your education. Okay. So now read this question. Your parents set up a trust fund for you 10 years ago. That is now worth rupees 19,671 rupees. If the fund earned 7% per year, how much did your So parents basically this invest? we need to calculate. So again, we have to use the present value. Okay. Your parents set up the trust 10 years ago. That is now worth 19,671 rupees. Okay. So it is earning 7%. So how much you should be doing it? So you would be, calculating the present value. So how much it comes to? Basically, what formula you will be? Around So 10,000. that means, 10,000. 10,000. Okay. So you put 7% rate of interest, NPR is 10. So today you are getting, you have been getting 1,96,000, 19,000, the amount was 19,000. Okay. So how much money they have put so that it has grown to 19,000. So you go to the formula, present value, put the rate, put the NPR and put the future value, that this is the money you're going to get after 10 years. So what should be the present value? 10,000. So that means they have put 10,000 rupees in the account, which has grown to 19,000 and you're getting this amount. So is that clear to everyone? आपके पेरेंट ने 10 साल पहले कुछ पैसा लगाया था और वो जो है आज 19,671 रुपए हो गया है. तो आपको पता लगाना कि उन्होंने कितना पैसा जमा कराया था. तो आपकी आज प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो पता चल जाएगा कि 10,000 रुपए जमा कराया था उन्होंने, जो कि 19,671 हो गया. इज दैट क्लियर? ओके, क्लियर. सो जस्ट रीड दिस. Suppose that an investor wants to find out the present value of rupees 50,000 to be received after 15 years. Our interest rate is 9%. Suppose that an investor wants to find out the present value of 50,000 to be received after 15 years and the rate of interest is 9 years. Tell me, what amount you should deposit today so that it grows to 50,000 in 15 years at the rate of interest of 9%. 13726. Okay, so if you use the long formula, which will be 50,000 divided by 1.09 raised to power 15. But when you look at the, the table, then, you look at the Excel. So you put 9%, NPR 15, and the future value has grown to 50,000. So this is the present value, 13,726. Okay, should I do that on an Excel sheet? Yes, sir, Excel sheet पे. तो ये जो है 9% है, 15 साल है, 15,000 है. ठीक है. सो क्वेश्चन क्या था? 9% 15 साल. तो एक सेकेंड यहाँ आ जाओ. Suppose the investor wants to find out the present value of 50,000 to be received after 15 years and her rate of interest is 9%. Okay. So we use the formula present value.
Sir, first we enter the values. इसको मैं बंद कर दूं. हाँ, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू. Present value. So present value से For that we have to What write is the rate I this should take? present value 9%. 9%. And what is the period? 15 years. 15 year. 15 years. And where should I put my money here? FV. कितना? FE. FV. 50,000 50,000. minus 50. Minus 50,000. Okay, so that means how much money should I deposit today? It has to be 13,726. अगर मैं आज 13,726 रुपए 90 पैसे लगाऊं 15 साल के लिए, and I'm going to get 9%, so amount will be 50,000. Okay, is that okay? Right. Right. Okay. So now we understand some very important relationships. Okay, read this. Present value. For a given interest. Go ahead. Present Simran, go ahead. value important relationship. One, for a given interest rate, the longer the time period, the lower the present value. What is the present value of rupees 500 to be received in 5 years, 10 years? The discount rate is If you take 10%. 5 years, okay, then the present value is coming 310 rupees 46 पैसा. यानी कि आज 500 रुपए की वैल्यू जो है, अगर आपको 5 साल के बाद मिलेगा तो आज की वैल्यू कितनी है? 310. अगर यही पैसा आपको 10 साल के बाद मिले तो उसकी आज की वैल्यू कितनी है? 192. So higher the period, lower will be the value. So this is a very important first relationship, that the present value will become lesser and lesser if the number of years go more. अगर मैं आपको वही 500 रुपए 5 साल के बाद दूं तो उसकी वैल्यू आज जो है 310 रुपए है. अगर यही 500 रुपए मैं आपको 10 साल के बाद दूं तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू जो है 192 है. विद अ गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट द वैल्यू इज गोइंग टू फॉल. प्रेजेंट वैल्यू इज गोइंग टू बी वेरी लेस as the number of years go more. Okay, second relationship. For a given time period, the higher the interest rate, the smaller So, the present with value. for a given period, अगर period same हो, higher the interest rate, smaller will be the present value. Okay, read further. What is the present value of rupees 500 received in 5 years if the interest rate is 10%? हाँ, मुझे बताओ कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है या 15%, किसमें वैल्यू ज्यादा आएगी और किसमें कम आएगी? 10% वाले में ज्यादा आएगी. 310 रुपए आएगी आपकी वैल्यू. यानी आज की वैल्यू जो है वो 310 है अगर 10% के हिसाब से हम उसको डिस्काउंट करें, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है. अगर हम उसको 15 से हिसाब से करेंगे तो वैल्यू और कम हो जाएगी, 248. So these are two very important relationships, and we will understand, and they are used very widely in our topics on finance. Okay, when we do understand about valuation of companies and how do we calculate the share value of a company or value of the company itself. So that time this will be very important be used. Okay, fine. Okay, so this is basically formula which we have done so far. This is just a refresher. So present value is nothing but future value divided by 1 plus I raised to power n. So this is what we have been doing to calculate the present value. Okay, now we move on to present value of an annuity. अब सपोज आपको पैसा मिल रहा है कोई हर साल मैं आपको 1000 रुपए दे रहा हूं 10 साल तक, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% है. सो व्हाट इज द वैल्यू टुडे? ओके, सो दैट इज द गेन. सो जस्ट रीड दिस. Investor may have an investment opportunity of receiving an annuity, a constant periodic amount for a certain specified numbers of years. We have to find out the present value of the annual amount every year, and we'll have to aggregate all the present values to get the total present value of the मैंने annuity. आपको बताया कि मैं आपको कुछ पैसे दे रहा हूं हर साल. ओके, तो अब उसकी आज की वैल्यू कितनी है? सपोज मैं आपको 5000 रुपए हर साल देता रहूं 10 साल तक, तो आज मैं बोलूं कि आज आपको मैं हर साल दिए 5000, दैट मीन्स 50,000 है. ओके, आपको मैंने 50,000 रुपए दिए थे 10 साल में, तो उसकी आज की वैल्यू कितनी है? अगर बोलो भाई इतना पैसा आज ही दे दो मुझे आप, तो मुझे एन्युटी नहीं चाहिए. तो इट विल डिपेंड ऑन द रेट ऑफ इंटरेस्ट. ओके, सो वी विल अंडरस्टैंड. सो लेट्स से एग्जांपल. रीड दिस. For example,
An investor who has a required rate of interest as 10% per year may have an opportunity to receive an annuity of ₹1 for तो इसमें क्या है 4 कि years. आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है. दिस इज योर रिक्वायर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट. दिस इज द अमाउंट विच यू कैन अर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट्स. तो अगर आपको ₹1 की एन्युटी मिलती है, हर साल आपको ₹1 मिलता है 4 साल तक, ओके, तो उसकी क्या प्रेजेंट आपने हर साल आपने टोटल 4 साल में कितना पैसा आपको मिला आपको ₹4. लेकिन उसकी वैल्यू आज तो ₹4 नहीं है, कम होनी चाहिए. तो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग. द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वन रिसीव्ड आफ्टर 1 year विल बी P is equal to 1 divided by 1.1 raised to power 1. तो जो आपने पैसा मुझे 1 साल के बाद दिया, आज दिया, उसकी वैल्यू जो है 90 पैसे है. और जो पैसा आपने 2 साल के बाद दिया ₹1, उसकी 82 पैसे है. 3 साल के बाद रेट और कम हो जाएगा क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिस्काउंट करेंगे अब 3 साल में. तो हर साल का तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल मनी which I have been giving you ₹1 for every year. तो व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू? अगर मैं आपको कितने पैसे आज दे दूं, अगर आपका 10% रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, तो मैं आपको हर साल ₹1 दूं 4 साल तक, तो मैं आज आपको कितने पैसे दे दूं जिससे कि आपको बोले मुझे इतने ही दे दो, तो यू कैन हैव दैट विच विल बी इक्विवेलेंट. तो इसमें हमने क्या करा, हर साल के ₹1 को प्रेजेंट वैल्यू निकाली और फिर सबको ऐड कर दिया, तो हमारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी निकल गई. ओके, यानी कि दोबारा रिपीट करता हूं, आपका 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है. फॉर एग्जाम्पल, इन्वेस्टर हु हैज रिक्वायर्ड रेट ऑफ 10% पर ईयर मे हैव एन अपॉर्चुनिटी टू रिसीव एन एन्युटी. दैट मीन्स यू आर गोइंग टू रिसीव ₹1 every year. In 4 years you are going to receive ₹4. So if you receive 3.169 today, you will be, it is equivalent to of receiving ₹1 every year, isn't it? तो ये फॉर्मूला है. तो इसको हम चलते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं. रीड दिस क्वेश्चन. A person receives an annuity of ₹5,000 for 4 years. If the rate of the interest is 10%, the present value of ₹5,000 इसमें क्या है annuity कि is आपको ₹5,000 हर साल मिल रहा है, ओके, एंड रिक्वायर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%. तो आप क्या करोगे, आप जो है या तो आप हम जाएंगे सीधा एक्सेल में, तो हम इसमें प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे. अब हमें पीएमटी को लगाना है यहाँ पर 5,000. ओके, सो लेट मी जस्ट गो टू द फॉर्मूला. ओके, तो हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू. ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%. ओके, और साल कितने हैं, 4 years. 4 years. 4 years. और पीएमटी कितनी है, यानी कितनी एन्युटी मिल रही है आपको, 5,000. इसको माइनस लगा दिया यहाँ पर, तो इसकी आज की वैल्यू होगी 15,000. यानी कि इसका मतलब है कि अब ₹5,000 आपको हर साल मिल रहे हैं और 4 साल तक के लिए 10% के लिए, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू होगी 15,800. तो इसका मतलब ये भी होगा कि आप ₹15,850 आज दे दो और आपको हर साल 5,000 मिलेंगे, तो यानी कि आपको 10% रेट ऑफ रिटर्न मिला. तो लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन. A person receives an annuity of 4,000 for 4 years. If the rate of interest is 10%, the present value of 5,000 will be basically 15,850. तो यानी कि आज आपको 15,850 मिल जाएं, या आज आप 15,850 दीजिए मुझे और मैं आपको ₹5,000 दूंगा हर साल 4 साल तक, और आपको 10% रेट के हिसाब से दूंगा, तो आपका जो है आज आपको कितने देने पड़ेंगे मुझे, ₹15,850. I'll just repeat this question. I tell you that I'll give you ₹5,000 every year for 4 years. ₹5,000 at the end of the year for 4 years. और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है. तो आज मैं आप मुझे कितना पैसा दोगे जिससे कि मैं आपको ये पैसे दूं? What amount of investment you should do today so that you earn ₹5,000 every year for 4 years and you get 10% rate of interest. So which means that you have to give me how much money today? 15,850. 15,850 आज दे दोगे मुझे और मैं आपको ₹5,000 4 साल तक देता हूं और आपको 10% ब्याज भी देता हूं, तो आपको
कितना मतलब पैसा आज देना पड़ेगा 15,850, इसका मतलब ये है। तो ये हमने ये निकाल दिया इसको। ओके, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सर इधर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% का क्या सिग्निफिकेंस है? अगर हम उससे लमसम मान लो 15,000 लेते हैं। नहीं, ऐसा है, देखो मैं आपको फिर एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूं, यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। अब आप क्या दे रहे हो मुझे? मैं आपको दे रहा हूं 60,000 रुपए 5 साल तक। हर साल आपको 60,000 रुपए दे देता हूं। ओके फाइन, और मैं आपको देता हूं ओके इंटरेस्ट 9%। ओके फाइन, तो आज आप मुझे कितना पैसे दोगे? हाउ मच मनी यू शुड डिपॉजिट टुडे विद मी सो दैट आई गिव यू 60,000 रुपीज पर एनम फॉर 5 years? नहीं सर, मतलब इधर कंफ्यूजन क्या है सर? मान लो 60,000 5 ईयर के लिए वो कांस्टेंट दे रहा है, तो मेरे को 9% रेट ऑफ नहीं, इंटरेस्ट ये तो नहीं देखो ना, मिल रहा ना। अब दोबारा देखते हैं, इससे कंफ्यूजन अभी क्लियर हो जाएगा। तो हमने क्या करा, प्रेजेंट वैल्यू निकाली। तो यहां पर हमने क्या लिखा है, यहां पर पहले क्या लिखा है हमने, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, जस्ट लुक एट दिस एंड देन इफ यू स्टिल हैव अ कंफ्यूजन आस्क। 5 साल, ओके, और आप मुझे हर साल, मैं आपको 60,000 रुपए दे रहा हूं हर साल। ओके, विच मीन्स 4 साल तक के अगर आप जोड़ दो तो कितने आप मुझे दे दोगे? 2,40,000, है कि नहीं? फाइन, तो लेकिन हम आपको आज देने पड़ेंगे मुझे 2,33,000 रुपए, जिससे कि मैं आपको ये 60,000 रुपए हर साल दूंगा। ओके, यू हैव टू डिपॉजिट 2,33,000 टुडे विद मी and I'll give you 60,000 rupees for 5 years every year. Okay, so आज आपको कितना पैसा मुझे देना पड़ेगा so that you earn that rate of interest, you earn this 60,000. So this is this thing. So any doubt again, can you raise your? हाँ, नाउ गॉट इट तो सर। वो आपके पहले तो हाँ, अब नो सर, कंसेप्ट नाउ गॉट समझ में आ इट। जाएगा। अच्छा, अगर सपोज मैं ये यहां पर ये अमाउंट मैं आपको फॉर एग्जांपल, चलो आप कैलकुलेट कीजिए कि अब मैं आपको 75,000 रुपए हर साल दे रहा हूं 10 साल के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है। तो मुझे बताइए कि आज आपको मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा? 4,23,766। तो हम इसको दोबारा देखते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है हमने, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मुझे कितना मिल रहा है? 12%। ओके फाइन, और एनपीआर कितने हैं? 10 साल। ओके, एंड हाउ मच यू हैव टू गेटिंग अ पीएमटी? तो पीएमटी में 75,000, तो 75,000 रुपए आपको मिल रहे हैं 12% ब्याज पे 10 साल तक के लिए। तो आज आप मुझे कितना पैसा दोगे? इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 4,23,000। अच्छा, अब ठीक उल्टा उल्टा भी निकाल सकते हैं। अब 75,000 रुपए आपको मिल रहे हैं और आपने मुझे 4,23,000 दिया 10 साल में, तो मुझे रेट निकालना है कि मुझे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। तो मैं इसको रिसेंटली फॉर्मूला में रेट निकालूंगा। तो एनपीआर कितना है? 10 साल। ओके, पीएमटी कितनी है? 75,000, और फ्यूचर वैल्यू कितनी आ रही है? 4,23,000। सॉरी, गड़बड़ हुई है। 4,23,000 टीवी है ना, एक कर सेकंड लगते सर। वापस कर। अब मैं यहां पर क्या कह रहा हूं कि आप मुझे 75,000, क्वेश्चन है कि मैं आपको 75,000 रुपए दे रहा हूं हर साल। ओके फाइन, और कितने साल के लिए? 10 साल के लिए। सो दिस इज द एन्युटी which you will be getting every year. Okay, and these are years, and आज आपसे मैं ले रहा हूं 4,23,766 रुपए। ओके, तो दिस इज बेसिकली आज ले रहा हूं, तो ये माइनस आपकी जेब से निकल रहे हैं। ओके, अब आपको निकालना है कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिला। तो मैं ये देखता हूं रिसेंटली यूज में रेट। तो एनपीआर कितना है? वो हाँ 10 years। 10 years। ओके फाइन, और आपकी पीएम की कितनी है? 75,000। 75,000। तो आपको मिल रहा है 75,000। ओके, तो
अब मुझे बताओ इसमें कहाँ डालना पड़ेगा, पीवी में डालना पड़ेगा या एफ एफ फ्यूचर FV पे फ्यूचर वैल्यू सर। फ्यूचर में हमें मिलेगा वो 4 लाख। 23,766। कुछ गड़बड़ आ गई। रेट 10 साल है और पीएमटी कितनी है? 75,000। पीवी में आएगा ना 10 साल में, अगर PV 70 में हटाओ में जाए आएगा, तो बहुत वहीं पे तो 7 लाख हो गया। 4,23,000 इसको माइनस कर। और मैं ओके कर दूं इसको। हाँ, तो आपको 12% ब्याज मिल रहा है। ओके, शुड आई डू इट अगेन? दोबारा करता हूं मैं इसको। हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया कि मैं आपको 75,000 रुपए दूंगा हर साल 10 साल तक। ओके फाइन, आज आप मुझे 4,23,000 दे दो आज, प्रेजेंट वैल्यू। दैट मीन्स टुडे हाउ मच यू गोइंग टू गिव मी? 4,23,000। तो फ्यूचर में नहीं जाएगा। दोबारा देखते हैं हम। रेट ऑफ इंटरेस्ट एनपीआर इज 10। ओके, 10 साल तक आपने मुझे कितना देना है? मैंने आपको कितना देना है? 75,000। ये मिलेगा आपको। आज आप मुझे कितना पैसा दे रहे हो? माइनस 4,23,766। तो ये जो है आपका आ गया 12%। अच्छा, एक बार और देखते हैं इसी को ही। अब मैं आपसे कहता हूं कि मैं आपको 45,000 रुपए दूंगा इस साल तक। ओके, आज आप मुझे दे दो, ये 80,000 है, तो आप मुझे दे दो आज, तो हम ये देखें, ये बनता है 9 लाख। तो आप मुझे दे दो आप 6,50,000 आज। तो बताइए कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिला है? 3%। और ये 6.5 लाख है। कितना है? हाउ मच? 3% सर। 3 3%। 3 सर, विल यू 3। इन्वेस्ट? यस और नो? अगर मैं आपसे नो, 4.5 लाख रुपए देता हूं, इट इज लोअर देन, नो सर। 4.5 लाख रुपए इन्फ्लेशन। मुझे आप दे दो, आज दे दो, और मैं आपको 45 साल दूंगा 20 साल तक। तो व्हाट इज द रिटर्न यू आर गेटिंग? कितना? 3%। 3% आया था सर इसका। 45,000 रुपए मैं आपको दे रहा हूं 20 साल तक, और आज आपसे ले रहा हूं 4.5 लाख। तो अगर हम फॉर्मूला यूज करें इसका, सर 80%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? एनपीआर इज 20 years 8%। and PMT is how much? 45,000 and प्रेजेंट वैल्यू इज आज आज ले रहा हूं आपसे 4.5 लाख। ओके, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है करीब करीब 8%। हैव यू अंडरस्टूड? शुड आई डू इट अगेन? यस सर। ओके, दोबारा देखिए। यस सर। देखो, अब मैं इसको थोड़ा और चेंज करता हूं। मैं आपको दे रहा हूं 55,000 रुपए। ओके, और आपसे ले रहा हूं 4.5 लाख आज, और हर साल आपको 55,000 दूंगा। तो नाउ रामवी, टेल मी व्हाट शुड आई बी डूइंग? व्हाट फॉर्मूला आई विल बी यूजिंग? आई वांट टू कैलकुलेट माय रिटर्न। ओके, रेट। तो रेट Sir, में rate. कितने साल We'll be using एनपीआर rate. में कितना लिखूंगा? 20 years. 20 years. And how much is the money which you will be getting every year? 50, 55,000. 55,000. Okay. And how much money you have to give me today so that I give you 55,000 rupees after for every 20 years? How much money I am asking from you? 4,50,000. 4,50,000. So what is the return you are getting? 11%. So 11%. will you invest, Ramveer, in this proposal? If the return is very safe, there is no risk in that. Yes, sir. Okay. So Definitely, sir. अब दोबारा देखिए, Yes. somebody else is going to try it. Okay, so just try someone. I'm going to give you 76,000 rupees per annum. Okay, for 10 years. You are going to give me 4,50,000 today. Or say, sorry, I'm just changing it.
I'm going to take 3,50,000 today. Now tell me what is the rate of interest. Please, everybody calculate. 17. 17%. How many years, sir? 10 साल हैं, हर साल मैं आपसे आपको 76,000 रुपए दूंगा हर साल, 76,000 for 10 years. I am taking 35,000. I am taking 3. हाँ जी? 28% again. 28%. 17% है सर 17%. 1717 yes हाँ सर, देख लेते हैं. तो पीएम की कितनी है? 76,000. यानी आई एम गोइंग टू गिव यू 76, बट आई एम टेकिंग टुडे 3,50,000 okay. right So you're getting 17% return, okay? Okay. yes So this is great. So you have all followed basically, isn't it? Okay. अब आगे चलते हैं.